Hello friends, this is Praveen. Welcome to our YouTube channel. In today's lecture, we are going to study some mathematical tools that are going to be used in next coming chapters. First of all, I like to say sorry because I couldn't upload the videos since 1.5 months. But from today, I'm going to continue it. So in mathematical tool, first of all, we are going to study about the coordinate geometry. We have already studied about it in 9th and 10th standard. But here I will redefine some terms related to coordinate and geometry, and I will also tell you some mathematical tools that are already in mathematics in 11th and 12th standard. So let's start about the coordinate geometry. As we already know that why the coordinate geometry is used to find the location of a point, to give the numerical value to the position of a point, to a line, or to a curve or the slope, we need the coordinate geometry. For that, we need to define some important terms related to coordinate geometry. So let's discuss about the important terms related to the coordinate geometry. So friends, let's see what is the coordinate system. कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमको करना क्या होता है, किसी पॉइंट, किसी लाइन या किसी कर्व या स्लोप का इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ता है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी पड़ती है, किसी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन बताना पड़ता है. तो ये सबको बताने के लिए हमको जिस रेफरेंस कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है उसको ही हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं. सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम? टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस or to assign or find out the exact numerical value of the position of the points, lines, curves, slopes, etc. A certain reference system is used and called as coordinate system. There are many coordinate systems. बहुत सारे coordinate systems हैं, जिसमें से जो main 4 coordinate systems हैं, those are known as rectangular or Cartesian coordinate system, number 2 polar coordinate system, and number 3 spherical coordinate system, and number 4 cylindrical coordinate system. We are going to strictly focus on the rectangular coordinate system. फिजिक्स में जनरली हम राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं. और राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता क्या है, दो मेन चीजें हमको जाननी जरूरी है कि ओरिजिन क्या होता है, दूसरा एक्सिस या एक्सेस क्या होता है. सो राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम के दो पार्ट्स, जो दो मेन एलिमेंट्स हैं, दैट आर ओरिजिन एंड एक्सिस और एक्सेस. तो फिर से देख लेते हैं व्हाट इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम. To specify the position of a point in the space or to find or assign the exact numerical value to the position of a point or line or slope or curve, etc., we need a certain reference coordinate, and that certain reference coordinate is called as coordinate system. There are many coordinate systems in the physics, but a right-handed coordinate system is specifically used out of these four coordinate system, that is rectangular coordinate system, polar coordinate system, spherical coordinate system, and cylindrical coordinate system. We use only rectangular or right-handed coordinate system, which consists of number 1 origin and number 2 axis or axis. For example, if there is a point on a line or only in one direction, suppose एक पॉइंट है जो कि खाली एक ही डायरेक्शन में दिया गया है या किसी एक लाइन पे लाई करता है, देन वी आर रिक्वायर्ड ओनली वन कोऑर्डिनेट. तो हमको एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी. अगर एक पॉइंट किसी एक लाइन पे लाई करता है, एक पॉइंट हो या बहुत सारे पॉइंट्स हो, एक ही लाइन पे लाई करता हो या एक ही डायरेक्शन में सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, देन टू फाइंड द पोजिशन और लोकेशन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स ओनली वन कोऑर्डिनेट इज रिक्वायर्ड. एंड अगर एक पॉइंट या बहुत सारे पॉइंट्स क्या है, किसी प्लेन में दिए गए हैं, देन टू गिव देयर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड टू फाइंड देयर लोकेशंस वी नीड द टू कोऑर्डिनेट्स, दैट इज कोऑर्डिनेट अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. हमको दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी. एंड अगर एक पॉइंट या बहुत सारे पॉइंट्स किसी स्पेस में दिए गए हैं, देन वी आर रिक्वायर्ड 3 कोऑर्डिनेट्स. हमको 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है. Now let's see what is the origin and what is the axis and axis. तो किसी पॉइंट या किसी बहुत सारे पॉइंट्स का या किसी लाइन का लोकेशन पता करने के लिए, उसका इक्वेशन बताने के लिए हमको ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि ओरिजिन क्या होता है और एक्सिस या एक्सेस क्या होते हैं. तो आइए देखते हैं व्हाट इज द ओरिजिन एंड व्हाट इज द एक्सिस एंड एक्सेस. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द ओरिजिन. ओरिजिन क्या होता है? कोई भी ऐसा फिक्स्ड पॉइंट जो आपके लिए कन्वीनियंट हो,
जैसे घर के रूम में कोई कॉर्नर हो उसको भी हम ओरिजिन कंसीडर कर सकते हैं। ये मार्कर है, मार्कर का ये एंड भी हम ओरिजिन कंसीडर कर सकते हैं, ये एंड को भी हम ओरिजिन कंसीडर कर सकते हैं। तो कोई भी फिक्स्ड पॉइंट जो हमारे लिए कन्वीनियंट हो उसको हम ओरिजिन कंसीडर कर सकते हैं, एंड इसी फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में सारे मेजरमेंट्स किए जाते हैं। सो व्हाट इज द ओरिजिन? एनी फिक्स्ड पॉइंट कन्वीनियंट टू अस विथ रिस्पेक्ट टू विच ऑल द मेजरमेंट्स आर डन is called the origin of coordinate system and it is generally denoted by capital O। कोई भी फिक्स्ड पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में सारे मेजरमेंट्स किए जाते हैं और जो हमारे लिए कन्वीनियंट होता है, दैट फिक्स्ड पॉइंट इज टेकन एज द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। वो पॉइंट किसी स्पेस में हो सकता है, किसी प्लेन में हो सकता है, या किसी लाइन के अलोंग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि कोई पॉइंट किसी प्लेन में हो या किसी लाइन के अलोंग हुई हो, वो स्पेस में भी हो सकता है, किसी लाइन के अलोंग भी हम फिक्स्ड पॉइंट ले सकते हैं या किसी प्लेन में भी ले सकते हैं, और सारे के सारे मेजरमेंट्स उसी फिक्स्ड पॉइंट यानी ओरिजिन से किए जाते हैं। सो ओरिजिन इज व्हाट? एनी फिक्स्ड पॉइंट कन्वीनियंट टू अस with respect to which all the measurements are done is called as origin of the coordinate system, and it is denoted by capital O। Now let's see what is the axis or axis. Any fixed direction passing through the origin and which is convenient to us can be taken as the axis। कोई भी फिक्स्ड डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन, यानी कि अगर आपने ये पॉइंट लिया तो इस पॉइंट से इधर साइड में आप जाओ, चाहे ये भी आप एक्सिस ले सकते हो, इस डायरेक्शन में भी जाओ, इधर भी एक्सिस ले सकते हो, इस डायरेक्शन में भी आप एक्सिस ले सकते हो, इस डायरेक्शन में भी एक्सिस ले सकते हो। कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है किसी भी फिक्स डायरेक्शन में। कोई भी फिक्स डायरेक्शन, चाहे वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो या वर्टिकल डायरेक्शन हो या किसी अदर एंगल पे हो, तो कोई भी फिक्स डायरेक्शन जो कि ओरिजिन से पास करता हो उसको हम एक्सिस कंसीडर कर सकते हैं। सपोज बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं और बहुत सारे पॉइंट्स एक ही डायरेक्शन में दिए गए हैं। ये सपोज एक फिक्स्ड पॉइंट है O, और इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, ये A और ये B है, सपोज A और B है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में दिए गए। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक ही एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। जनरली उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। बट एक चीज याद रखना कि जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही लिया जाए। आप एक्स एक्सिस को ऐसे भी ले सकते हैं, बशर्ते वो ओरिजिन से पास करना चाहिए। इधर भी आप एक्स एक्सिस ले सकते हैं, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप किसी भी डायरेक्शन में। जनरली हम बोलते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस लिया जाता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि एक्स एक्सिस टू बी हॉरिजॉन्टल। खाली एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो, किसी भी डायरेक्शन में आप एक्स एक्सिस ले सकते हो। तो क्या होगा? एनी फिक्स डायरेक्शन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड कन्वीनियंट टू अस कैन बी टेकन एज द ओरिजिन। अगर बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हो या एक पॉइंट दिया गया हो एक ही डायरेक्शन में, तो हमको एक ही एक्सिस की जरूरत पड़ती है। जनरली उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। इफ ए पॉइंट और नंबर ऑफ पॉइंट्स आर गिवन इन ए प्लेन, then we are required two axes and those two axes are called as x and y axis। तो ये x axis अगर हमने horizontal डायरेक्शन में लिया है तो दूसरा जो axis होगा ये vertical डायरेक्शन में होगा। अब एक चीज और मैं बता दूं कि ये एक्सिस जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में हो। आप अगर इधर एक्स एक्सिस लेते हैं तो वाई एक्सिस इधर साइड में हो जाएगा। ये क्या हो गया? ये ओरिजिन हो गया, यहाँ पे ओरिजिन हो जाएगा। देयर इज नो प्रीफर्ड डायरेक्शन फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यू कैन टेक इट एनीवेयर इन एनी डायरेक्शन, कहीं पे भी ले सकते हो। ऑलराइट, तो एक्स एक्सिस अगर एक से ज्यादा एक्सिस की जरूरत पड़ती है देन इट इज कॉल्ड एज एक्सिस। इसको क्या बोल सकते हैं? सिंगल एक्सिस की जरूरत, सिंगल लाइन की जरूरत पड़ती है, सिंगल डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स, देन वी आर रिक्वायर्ड ओनली वन एक्सिस। एंड अगर एक से ज्यादा एक्सिस की जरूरत पड़ती है देन इट इज कॉल्ड एज एक्सिस। इफ a point or the number of points are given in this space, then to specify their positions we are required three directions, that is three axes. These three axes are generally represented by x-axis, y-axis and z-axis. All these three axes are mutually perpendicular to each other. For example, अगर हमने क्या किया, अगर हमने horizontal direction में x-axis को लिया, अगर हमने horizontal direction में x-axis को लिया, वर्टिकल डायरेक्शन में हमने वाई एक्सिस को लिया,
तो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस हो जाएगा। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है। आप चेंज भी कर सकते हो, इसको जेड ले सकते हो, इसको वाई ले सकते हो, इसको एक्स ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि ये एक्स हो, ये वाई हो और ये जेड हो, बट हमारे लिए कन्वीनियंट ही है बिकॉज हम यही पढ़ते आए हुए हैं। तो हमारे लिए एक्स एक्सिस किधर हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वाई एक्सिस इधर हो जाएगा एंड जेड एक्सिस इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ये तीनों एक ही पॉइंट से पास करेंगे, पॉइंट ओ से। तीनों के बीच का एंगल यानी एक्स वाई के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा और वाई और जेड के बीच का भी 90 डिग्री होगा और जेड और एक्स के बीच का भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। दैट इज व्हाई दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बिकॉज ऑल दीज थ्री एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. Now let's see how to find the position of a point in the space. So the position of a point in the space is obtained by its distance from the origin along or parallel to the x-axis, y-axis and z-axis. Suppose हमने यहाँ पे 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। एंड सपोज वी नीड टू फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ द पॉइंट P। तो उसके लिए हमको ये चेक करना पड़ेगा कि ये पॉइंट P x एक्सिस के अलॉन्ग कितना ट्रैवल किया, फिर y एक्सिस के अलॉन्ग कितना ट्रैवल किया, फिर z एक्सिस के अलॉन्ग कितना ट्रैवल किया। तो x एक्सिस के अलॉन्ग इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, फिर y एक्सिस के अलॉन्ग फाइंड आउट करेंगे और z एक्सिस के अलॉन्ग फाइंड आउट करेंगे। तीनों डिस्टेंस जो मिल जाएगा वही तीनों एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस रहेगा वही इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट माना जाएगा या इसका पोजीशन माना जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट P है वो x एक्सिस के अलॉन्ग या x एक्सिस के पैरेलल x डिस्टेंस कवर किया होगा ओरिजिन से, y एक्सिस के अलॉन्ग y डिस्टेंस कवर किया होगा, फिर z एक्सिस के अलॉन्ग z डिस्टेंस कवर किया होगा, तब जाके इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, x, y एंड z एक्सिस। तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए अगर हम उस पॉइंट का ओरिजिन से एक्सिस के अलॉन्ग कितना डिस्टेंस है वो मेजर कर लें, देन वी कैन इजीली गेट द पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो x एक्सिस कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट, उसको हम एब्सिसा बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं और z कोऑर्डिनेट को हम एप्लीकेट बोलते हैं। ये तीनों को हम इस नाम से भी जानते हैं, x कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट मींस ऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट मींस व्हाट, इट इज एप्लीकेट। जनरली हमको x और y दिया जाता है जिसको हम एब्सिसा और ऑर्डिनेट से जानते हैं। मोस्टली z कोऑर्डिनेट को लोग नहीं जानते हैं कि इसको एप्लीकेट बोलते हैं या नहीं, तो z कोऑर्डिनेट को हम एप्लीकेट भी बोलते हैं। तो इस तरीके से किसी भी पॉइंट का हम क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमको खाली 2 ही एक्सिस दिया हुआ है यानी कि एक पॉइंट किसी प्लेन में है, देन वी आर रिक्वायर्ड ओनली 2 कोऑर्डिनेट्स, यानी तब उस टाइम हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, x और y कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हमने ये लिखा कि 2, 5, 7 सपोज किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट 2 यूनिट x एक्सिस के अलॉन्ग चला होगा, 5 यूनिट y एक्सिस के अलॉन्ग और 7 यूनिट z एक्सिस के अलॉन्ग ट्रैवल किया होगा या उसके पैरेलल ट्रैवल किया होगा। और अगर हमने ऐसा लिखा 2, 5, 0, तो इसका मतलब है कि जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस खाली x और y एक्सिस के पैरेलल है, z एक्सिस के पैरेलल इसका डिस्टेंस क्या है, 0 है। समझ में आया? तो x एक्सिस के अलॉन्ग कितना डिस्टेंस, 2 यूनिट, y एक्सिस के अलॉन्ग 5 यूनिट, बट z एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया, इसीलिए इसका जो कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसके पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको खाली 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है। अगर हमने क्या किया, यहाँ पे 0 कर दिया और यहाँ पे 7 कर दिया, तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट 0 है, यानी x के अलॉन्ग कोई भी डिस्टेंस नहीं है, y के अलॉन्ग 5 और z के अलॉन्ग 7 यूनिट। और अगर हमने इसको 2 किया और इसको 0 कर दिया, तो इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट है वो खाली x और z एक्सिस के अलॉन्ग है, y एक्सिस के अलॉन्ग जो कोऑर्डिनेट है वो 0 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट का पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं या उसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। उसके लिए हमको ओरिजिन से x एक्सिस के अलॉन्ग, y एक्सिस के अलॉन्ग और z एक्सिस के अलॉन्ग उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर लाइन के अलॉन्ग होता तो सिंगल कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती, यानी कि x एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ता। अगर प्लेन में होता तो x और y दोनों एक्सिस के अलॉन्ग हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ता, और अगर स्पेस में है तो तीनों एक्सिस के अलॉन्ग उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी दिस सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। नाउ सपोज वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स विच आर अलोंग ए स्ट्रेट लाइन।
तो पहला अगर हमको सपोज स्पेस में फाइंड आउट करना है, इन स्पेस सपोज हमको 2 पॉइंट्स दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 z1 है, एंड दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पॉइंट B है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 दिया हुआ है. Then the distance between point A and B in space is given by distance between points A and B, that is AB, is equal to square root of x2 minus x1 the whole square, square root of x2 minus x1 the whole square, plus y2 minus y1 the whole square, plus z2 minus z1 the whole square. अगर यही दो पॉइंट्स प्लेन में होते, इन ए प्लेन, यही पॉइंट्स क्या होते, प्लेन में होते, तब A का कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा होता है x1 y1 एंड B का कोऑर्डिनेट क्या होता, x2 y2 होता. तो इस केस में क्या होता, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B दैट इज AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर आता. z कोऑर्डिनेट विल बी 0 क्योंकि प्लेन में है तो z कोऑर्डिनेट दोनों का 0 होगा, तब ये फॉर्मूला आएगा. और सपोज एक पॉइंट है, एक पॉइंट दिया हुआ है, स्पेस में दिया हुआ है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आपको याद रखना हमेशा 0 0 होता है, 0 0 0. और एक पॉइंट A है, इस पॉइंट A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 और z1 दिया हुआ है. इसका ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो थर्ड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है फ्रॉम द ओरिजिन. तो क्या आएगा, OA आएगा एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर हो जाएगा. और अगर यही प्लेन स्पेस में ना होके किसी प्लेन में होता, और प्लेन में होता तो इसके पास z कोऑर्डिनेट नहीं होता. तो अगर यही प्लेन की बात करते तो इन प्लेन OA इज इक्वल टू क्या आता, स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर आता. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं. इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन स्पेस या प्लेन में निकाल सकते हैं, और इन दोनों फॉर्मूले का यूज़ करके हम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन निकाल सकते हैं, वेदर द पॉइंट इज इन स्पेस और इन प्लेन. चाहे वो स्पेस में हो या प्लेन में हो, ये सारे फॉर्मूले का यूज़ करके हम उस पॉइंट का पोजीशन यानी डिस्टेंस निकाल सकते हैं. कहाँ से, ओरिजिन से निकाल सकते हैं. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द स्लोप ऑफ ए लाइन. नाउ वी नीड टू फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन इन a plane. Suppose we have taken a 2-dimensional rectangular coordinate system, that is xy plane लिया है हमने, और इसमें एक लाइन है जिसके दो एंड पॉइंट का पोजीशन है A और B. A का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, x1 y1, और B का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2. तो x1 क्या है, x1 इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A फ्रॉम द ओरिजिन. x2 क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट B along x axis from the origin. y1 क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A from the origin along y axis, और y2 क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट B along the y axis from the origin. और हमको इस AB का क्या करना है, स्लोप फाइंड आउट करना पड़ता है. सपोज स्लोप फाइंड आउट करना है, तो स्लोप होता क्या है, स्लोप जनरली ये लाइन x एक्सिस से जितना एंगल बनाता है उसका टेंजेंट होता है, यानी tan थीटा जो होता है वही किसी दिए हुए लाइन का स्लोप होता है. और जो हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम द पॉजिटिव x एक्सिस. पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई भी लाइन किस एंगल पे, उसका टेंजेंट फाइंड आउट करने के बाद ही हमको क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा. तो हम क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग
points A having coordinates x1, y1 and points A having coordinate x1, y1 and B having coordinates x2, y2 is given by m equals to y2 minus y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो अगर हमको दो पॉइंट्स का किसी प्लेन में कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ हो या उसका पोजीशन दिया हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज स्लोप फॉर्मूला, वेयर m इज इक्वल टू क्या होता है, m इज इक्वल टू tan थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा इज एंगल made by line AB from positive x direction in anti-clockwise direction। थीटा क्या होता है, वो एंगल होता है जो ये लाइन पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाता है। तो इसका मतलब है कि हमको जो m मिलेगा वो tan थीटा के बराबर होगा। तो अगर हमने स्लोप फाइंड आउट कर लिया और थीटा फाइंड आउट कर रहा है तो स्लोप बराबर tan थीटा हो जाएगा और tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, उस m की वैल्यू के बराबर। तो थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इजीली। सो दिस इज कॉल्ड एज स्लोप फार्मूला। Now we need to give the equations of some straight line and to represent them on the xy coordinate axis. So let's see some equations. Number one, the equation ax plus by plus c equals to 0 is called as general form of the equation of straight line। यानी किसी भी straight line का जो जनरल फॉर्म होता है वो ax plus by plus c is equal to 0 के फॉर्म का होता है। बाकी सब क्या होते हैं, इसके स्पेसिफिक फॉर्म होते हैं या स्पेशल केसेस होते हैं। तो स्पेसिफिक फॉर्म में हम देखते हैं नंबर 2 क्या है, द इक्वेशन। अगर हमको x एक्सिस का इक्वेशन निकालना है तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 होगा। तो x एक्सिस का इक्वेशन मतलब y इज इक्वल टू 0। ऐसे ही पॉइंट नंबर 3, द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस व्हाट, इट इज x इज इक्वल टू 0। अगर आपको y एक्सिस का इक्वेशन निकालना है तो इट इज व्हाट, x इक्वल्स टू 0। चौथा पॉइंट क्या है, अगर हमको एक ऐसा स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है जो y एक्सिस के पैरेलल है और उससे कितने डिस्टेंस पे है, a डिस्टेंस पे है। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम इट इज x इक्वल्स टू a, जिसको हम xy कोऑर्डिनेट पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि y एक्सिस से ये लाइन कितने डिस्टेंस पे होगा, a डिस्टेंस पे होगा और y एक्सिस की ये लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। इसलिए इस लाइन का इक्वेशन जो होगा वो x इक्वल्स टू a होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस b फ्रॉम इट इज गिवन बाय y इक्वल्स टू b। अगर हमको ऐसे लाइन का इक्वेशन लिखना है जो कि क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है और उससे b डिस्टेंस पे है, तो उसका जो इक्वेशन होगा वो y इक्वल्स टू b होगा। यहाँ पे हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है, ये xy कोऑर्डिनेट है, ये एक ऐसा लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है प्लस इससे कितने डिस्टेंस पे, b डिस्टेंस पे, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू b होगा। नाउ वी नीड टू राइट द इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या होगा और उसके अलग अलग केसेस में हम कैसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो आइए देखते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y equals to mx plus c is called equation of straight line in slope intercept form। In slope intercept form, where m is equal to tan theta, called as slope of line, and theta is what, as we have earlier discussed,
theta is the angle made by the straight line from positive x direction measured in anti-clockwise direction, not in clockwise direction. And what is C? And C is intercept made by straight line on y-axis. C is what? C is that intercept that y-axis that line makes on the y-axis. Now let us discuss its some special cases. Suppose number one, suppose the intercept C is equal to 0. Intercept C is equal to 0 and slope m is greater than 0. Then the equation of line will be what? Y is equal to mx, because intercept intercept C is equal to 0, and the equation and the graph of the line will be passing through the origin, because intercept is 0, so the straight line will pass through the origin. This is x-axis, this is y-axis, and let this is theta angle. Here theta is less than 90 degree. If m is greater than 0, then theta is always less than 90 degree, that is acute angle. So we will get the graph like this. हमको जो ग्राफ मिलेगा वो ओरिजिन से पास करता हुआ मिलेगा, और जिसका एंगल क्या होगा? एक्स एक्सिस से 90 डिग्री से कम होगा, और उसका इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू एम एक्स मिलेगा। आइए दूसरा केस देखते हैं, दूसरे केस में कैसा ग्राफ मिलेगा और उसका इक्वेशन क्या होगा। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या है? इफ c इज इक्वल टू 0 एंड m इज लेस देन 0, m क्या है? 0 से कम है, देन अपने को क्या मिलेगा? इक्वेशन ऑफ लाइन, देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स। तो ऐसे केस में हमको ग्राफ क्या मिलेगा? ऐसे केस में हमको ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये नेगेटिव x एक्सिस और ये नेगेटिव y एक्सिस। तो स्लोप क्या दिया है? स्लोप 0 से कम है, स्लोप 0 से कम होगा तो थीटा विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो हमको जो ग्राफ मिलेगा वो क्या होगा? वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, जो कि क्योंकि इंटरसेप्ट 0 है तो वो जो स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन से पास करेगा। ये क्या एंगल है? थीटा। थीटा इज ग्रेटर देन 90, दैट इज ऑब्ट्यूस। इंटरसेप्ट 0 है और इसका जो स्लोप आया है वो 0 से छोटा है, यानी कि नेगेटिव होगा। तो हमको जो इक्वेशन मिलेगा y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केस नंबर 3, और ग्राफ अपने को ऐसा मिलने वाला है। नाउ केस नंबर 3, इफ c इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इज पॉजिटिव, अगर c क्या है? 0 के बराबर नहीं है लेकिन पॉजिटिव है, इसका मतलब 0 से बड़ा है, एंड m इज ऑल्सो पॉजिटिव दैट इज ग्रेटर देन 0, देन equation of straight line is given by y equals to mx plus c। तो हमको जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा वो y इज इक्वल टू mx प्लस c मिलेगा। m क्या है? m इज स्लोप ऑफ लाइन है विच इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। तो हमको जो स्ट्रेट लाइन मिलेगा वो क्या होगा? इस तरीके से मिलेगा। एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बनाएगा दैट एंगल विल बी एक्यूट एंगल, ये लेस देन 90 होगा। और कितना इंटरसेप्ट बना रहा है? सी इंटरसेप्ट बना रहा है, यानी कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग इंटरसेप्ट 0 नहीं है। कितना इंटरसेप्ट है? सी है, तो यहाँ से इंटरसेप्ट क्या मिल जाएगा? सी हो जाएगा। तो हमको ग्राफ ऐसा मिलने वाला है। ओके, सो इट इज़ नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन बिकॉज इंटरसेप्ट सी इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ केस नंबर 4, केस नंबर 4 में क्या होगा? व्हेन c इज
लेस देन ज़ीरो, सी क्या है, ज़ीरो से छोटा है यानी नेगेटिव है, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं व्हेन सी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो दैट इज एंड इज नेगेटिव, एंड इज नेगेटिव एंड m इज ग्रेटर देन ज़ीरो यानी कि स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, देन y इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमको, y इक्वल्स टू हमको mx, स्लोप क्या नेगेटिव है तो माइनस ही मिलेगा। तो इसका जो हमको ग्राफ मिलेगा वो कैसा रहेगा, x एक्सिस, ये y एक्सिस, स्लोप कहाँ पे बन रहा है, स्लोप माइनस सी है यानी माइनस y एक्सिस पे स्लोप बनेगा यहाँ से और ऐसा स्ट्रेट लाइन जाएगा। ये थीटा क्या हो जाएगा, थीटा विल बी स्लोप, थीटा विल बी द एंगल मेड बाय दिस लाइन विथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये केस में थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, बट ये जो स्लोप बनाया हुआ है वो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ऐसा ग्राफ आपको मिलने वाला है। ओके, नाउ लेट्स सी द केस नंबर 5। तो केस नंबर 5 क्या है फ्रेंड्स, व्हेन c इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड नेगेटिव, c क्या है, नेगेटिव है, ज़ीरो के बराबर नहीं है, एंड m क्या है, लेस देन ज़ीरो है, ज़ीरो से छोटा है, देन अपने को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी मिलेगा। और ऐसे इक्वेशन का जो ग्राफ है वो कैसा मिलेगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इंटरसेप्ट कहाँ पे बन रहा है, नेगेटिव, y एक्सिस से बन रहा है, और m क्या है, ज़ीरो से छोटा है यानी कि जो एंगल होगा वो ऑब्ट्यूज होगा, तो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा रहेगा इस तरीके से। ये जो इंटरसेप्ट बनेगा वो माइनस सी रहेगा, ये जो भी एंगल बनेगा वो कितना होगा, दिस इज थीटा विच इज़ ग्रेटर देन 90 हो जाएगा यानी ऑब्ट्यूज होगा। तो ऐसा ग्राफ हमको मिलने वाला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, थीटा विल बी ग्रेटर देन 90 एंड इंटरसेप्ट विल बी अलोंग द माइनस y एक्सिस, इधर साइड में होगा। केस नंबर 6 क्या है, व्हेन c इज ग्रेटर देन ज़ीरो, c क्या है, पॉजिटिव है, c इज ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब ज़ीरो से बड़ा है यानी पॉजिटिव रहेगा, एंड जो m है वो नेगेटिव है, ज़ीरो से छोटा है, देन अपने को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या मिलेगा, देन y इज इक्वल टू अपने को माइनस एम एक्स प्लस सी मिलने वाला है। और इसका ग्राफ कैसा मिलेगा, इसका ग्राफ मिलेगा ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो इसका मतलब है कि जो इंटरसेप्ट है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन एंगल क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूज होना चाहिए। तो हमको जो लाइन मिलेगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में वो कुछ ऐसा रहेगा, ये जो एंगल है थीटा जो कि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, दिस इज ग्रेटर देन 90 से ज़्यादा होगा, और ये स्लोप कितना बनाएगा, c बनाएगा। तो हमको ऐसा ग्राफ मिलने वाला है। सो केस नंबर 7 देखते हैं। केस नंबर 7 क्या है, व्हेन लाइन मेक्स A and B intercepts, A and B intercepts on x and y axis respectively, then equation of straight line is given by x upon a plus y upon b equals to 1। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा आएगा फ्रेंड्स, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, यानी ये एक लाइन है जो कि इधर साइड में a इंटरसेप्ट और y एक्सिस के लॉन्ग कितना इंटरसेप्ट बना रहा है, b इंटरसेप्ट बना रहा है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या मिलेगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 आने वाला है। केस नंबर 9, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट x1 y1 having slope
m इज गिवन बाई, क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन हो जाएगा। ये इक्वेशन, ये फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर यही क्या होता, दो पॉइंट से पास करता x1 y1 और x2 y से, तो हमको इक्वेशन ऑफ लाइन क्या मिलता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, दो पॉइंट से जब पास करेगा तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, और यहाँ पे क्या हो जाता है, x माइनस x1 होता है। ये फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। अब एक चीज़ और देख लेते हैं फ्रेंड्स, सपोज हमको इक्वेशन ऑफ लाइन ये फॉर्म में दिया है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में दिया है, तो वहाँ से हमको इंटरसेप्ट और स्लोप का फॉर्मूला कैसे मिलेगा। सपोज ऐसा दिया है, इफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन is ax plus by plus c is equal to 0, then we can write here by is equal to minus ax minus c, and therefore y is equal to minus a by b into x minus c by b, okay, y is equal to minus a by b x minus c by b. If I compare this equation with y is equal to mx plus c, then we get what? We get the slope m equals to minus a by b and intercept c is equal to minus c by b. तो हमको जो स्लोप मिलेगा वो माइनस ए बाई बी से मिलेगा, और इंटरसेप्ट किससे मिलेगा, इंटरसेप्ट अपने को इंटरसेप्ट किसके बराबर मिलेगा, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी के बराबर मिलेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली हम माइनस ए बाई बी निकालेंगे तो m मिल जाएगा, और माइनस सी बाई बी निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इंटरसेप्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, स्लोप और इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं एक दो न्यूमेरिकल कैसे हम स्लोप वगैरह फाइंड आउट करते हैं और उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 1, राइट द इक्वेशन एंड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन through points P having coordinates 2, 7 and Q having coordinates 6, 15. So first of all we need to find its slope as well as intercept made on the y-axis. So x1 y1 is equal to what? It is equal to 2, 7, and what is x2 y2? It is equal to 6, 15. So let us write the equation of slope m, which is equal to slope is given by y2 minus y1, y2 minus y1 divided by x2 minus x1, and this is equal to what? What is y2? Y2 is 15. What is y1? It is 7 divided by what is x2? X2 is 6, and what is x1? It is 2. Therefore it is equal to 8 by 4, that is equal to 2. तो स्लोप कितना मिल गया अपने को? 2 मिल गया। तो हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख लेते हैं। Therefore इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन is given by y minus y1. y1 is what? y1 is 7. y minus y1 is equal to m. m is what? It is 2 into x minus x1. What is x1? It is 2. Therefore we can write here y minus 7 is equal to 2x minus 4, or y is equal to 2x minus 4 plus 7. Therefore y is equal to 2x plus 3. So if I compare this equation by y equals to mx plus c, then I get what? I get m equals to 2
and c equals to 3. Therefore, if I draw the graph for a straight line, suppose this is x-axis, this is y-axis, then slope made on the y-axis is what? It is 3. So graph will not pass through the origin, straight line will not pass through the origin, it will make an intercept on the y-axis. So कितना intercept बना रहा है? It is 3 और ये हो जाएगा एंगल थीटा और इसका इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 होगा। ठीक है, इस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट? प्लॉट द लाइन 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। हमको ये क्या है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इसके लिए हमको क्या करना है? हमको ग्राफ ड्रॉ करना है या लाइन को ड्रॉ करना है xy कोऑर्डिनेट पे। सो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 12 हो जाएगा। माइनस 3 से डिवाइड कर दो दोनों साइड को, तो क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू माइनस 2x बाई माइनस 3 प्लस 12 बाई माइनस 3 एंड देयरफॉर वी गेट व्हाट? वी गेट 2 बाई 3x और यहाँ पे क्या मिल जाएगा? माइनस 4 मिल जाएगा। सो अगर हम कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m क्या मिलेगा? m इज इक्वल टू 2 बाई 3 है विच इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या हो गया? थीटा इज लेस देन 90 डिग्री विथ एक्स एक्सिस एंड c क्या मिला अपने को? माइनस 4 मिला, यानी स्लोप किधर है? नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो एक चीज़ अपने को ये तो पता चल गया कि जो लाइन है वो वाई एक्सिस को नेगेटिव 4 पे कट कर रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग 4 पे कट कर रहा है। तो ये पॉजिटिव x को क्योंकि स्लोप क्या पॉजिटिव है, तो लाइन किधर से जाएगा? पॉजिटिव x एक्सिस से होके जाएगा, यानी पॉजिटिव x एक्सिस को कट करेगा। तो किस पॉइंट पे कट करेगा उसको फाइंड आउट करने के लिए वी नीड टू पुट y इक्वल्स टू 0। हमको y इक्वल्स टू 0 रखना पड़ेगा, तो x की वैल्यू मिल जाएगी कि वो लाइन x को किस पॉइंट पे कट करेगा। तो हम क्या करेंगे? सब्सटीट्यूट कर दे, सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 1 है, y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1 we get what? 0 is equal to 2 by 3x minus 4. Therefore 2 by 3x is equal to 4 and 2 2s are 4. Therefore x is equal to 3 2s are 6. यानी कि वो x को x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा? 6 यूनिट पे कट करेगा। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट हम ग्राफ पेपर ले लेंगे। ग्राफ पेपर पे इजीली हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और ये हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एंड नाउ वी नीड टू ड्रॉ ए लाइन विच इज कटिंग एट -4 ऑन y एक्सिस एंड +6 ऑन पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा इस तरीके से, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, आगे तक जाएगा। ये कितने पे कट कर रहा है? -4 पे। ये कितने पे कट कर रहा है? ये 6 पे कट कर रहा है और ये हमारा पॉजिटिव x डायरेक्शन हो जाएगा। थीटा इज एक्यूट एंगल। तो ग्राफ इस तरीके से अपने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अच्छा, हम सेम जो स्लोप है, ये जो x एक्सिस के अलॉन्ग कितना मिला? -4, सॉरी y एक्सिस के अलॉन्ग -4 और x एक्सिस के अलॉन्ग 6 मिला है। तो सेम हम वैल्यू हम किसका यूज़ करके, ज़रूरी नहीं है कि हम इसी मेथड से सॉल्व करें, हम इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला है, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस का भी यूज़ करके हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा? उसके लिए हमको सिंपली जो इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, क्या दिया हुआ इक्वेशन? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 है। तो इसको हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इधर राइट साइड में 1 होना चाहिए, इसके लिए हम दोनों साइड को क्या करेंगे? 12 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x बाई 12 माइनस 3y बाई 12 इज इक्वल टू 12 बाई 12 दैट इज 1। तो ये जाएगा 2 6 12 एंड 3 4 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? x अपॉन 6। यहाँ पे प्लस लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? नीचे -4 करना पड़ेगा, तो ये फिर से माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये a है, a इज इक्वल टू 6
एंड b इज इक्वल टू -4 हो गया। ए क्या है, इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन ऑन x एक्सिस, जो कि हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, और b क्या है, इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन ऑन y एक्सिस। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। आइए सेम तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 इज प्लॉट द लाइन -3x - 5y = 15। ग्राफ पेपर पे ही हमको क्या करना पड़ता है, प्लॉट करना पड़ता है। तो मेथड 1 में आपको बताया कि y = mx + c के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, m की वैल्यू मिल जाएगी, c की वैल्यू मिलेगी, c इज व्हाट, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, y = 0 रखेंगे तो इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस भी मिल जाएगा। दूसरा इजी तरीका है x/a + y/b = 1 वाला फॉर्मूला यूज़ कर लें। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमको क्या लिख लेंगे, फ्रॉम अबव क्वेश्चन वी कैन राइट हियर -3x, दोनों साइड को क्या करो, 15 से डिवाइड कर लो। इधर 1 चाहिए अपने को तो 15 से ही डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड को। -3x/15 - 5y/15 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। चलो इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 15 को -3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, -5 मिलेगा, और ऊपर का साइन प्लस ले लेंगे, यहाँ पे प्लस लेंगे। 15 को -5 से डिवाइड करेंगे तो -3 मिल जाएगा, तो y/-3। आप चाहो तो ऊपर माइनस लो, नीचे माइनस लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बट अपने को क्या करना है, इस फॉर्मेट में लिखना है, x/a + y/b = 1 के फॉर्म में लिखना है, इसीलिए माइनस साइन को हमने नीचे ले लिया है, अदरवाइज ऊपर रखते हैं। अब इससे हम कंपेयर करेंगे ये वाले फॉर्मूले से, तो ए की जगह क्या है, कंपेयरिंग फ्रॉम दिस इक्वेशन या कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस वी गेट व्हाट, a = -5 विच इज इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन ऑन x एक्सिस, एंड b = क्या मिलेगा, -3 विच इज इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन ऑन y एक्सिस। तो हम क्या करते हैं, हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ पेपर पे। आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। इधर कितना चाहिए, 1 2 3 4 5 चाहिए, और इधर 1 2 3 चाहिए, ठीक है। तो आगे ड्रॉ करने के लिए स्केल का यूज़ करेंगे हम, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि x एक्सिस पे 5 से और y एक्सिस पे, सॉरी, x एक्सिस पे 5 से और y एक्सिस पे किससे पास करेगा, x एक्सिस पे -5 से और y एक्सिस पे 3 से पास करेगा, इस तरीके से। तो ये हो गया -5 और ये हो गया -3, और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन इज -3x - 5y = 15। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर में हमने पूरा स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ा, और उसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, और उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। सिमिलरली हम नेक्स्ट लेक्चर में पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे, पैराबोला के इक्वेशंस के बारे में, डिफरेंट केसेस में उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।